आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने IIT मद्रास के एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा है कि हम पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात में आम फहम के उसूल पर अमल करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि लेकिन जब बात ख़राब पड़ोसियों की हो जो दहशत गर्दी के साथ मुसलसल मुंसलिक रहें तो भारत को अपने अवाम का दिफा करने का हक हासिल है और हम जो ज़रूरी होगा वो करेंगे। आप हमसे पानी बांटने की दरख्वास्त नहीं कर सकते और साथ ही मुल्क में दहशत गर्दी फैलाएं। We are blessed with a lot of neighbors of various kinds, and I want to answer your question in a very common sense kind of way, because at the end of the day, people make out as though diplomacy is rocket science. It's common sense in kind of polished language. Now, what do you do in common sense with a neighbor? Any neighbor. I mean, you are in a hostel, you have neighbors. If you have a neighbor who is good to you, or at least who is not harmful to you, your natural instinct is to be kind, is to help that neighbor. If the neighbor has a problem, you would like to contribute in some way. If nothing else, you'll say hello. You will try to build friendships, bonding, etc. And that's what we do as a country. So, when you look around our neighborhood, wherever actually there is a sense of good neighborliness, I think you have seen India invest, India help, India share. You also work with neighbors by power grids, by waterways, by roads, by ports, by doing business, by helping tourism, by having people come for medical treatment. So this is the positive scenario. But you can also have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. Now, again, as I said, a lot of it is goodwill. Many years ago, we agreed to a water arrangement, water sharing arrangement, because the belief, the underpinning of that was, it was a gesture of goodwill, because for good neighborliness we were doing it. But if you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. If there is no good neighborliness, you don't get the benefits of that good neighborliness. You can't say, I will, please share water with me, but I will continue terrorism with you. बारामूला के इको पार्क इलाके में शदीद लैंड स्लाइडिंग के बायस श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसके नतीजे में गाड़ियों की आमद रफ्त रुक गई है। पहाड़ी से अचानक बड़ी मकदार में मलबा सड़क पर गिराने से इलाके में खौफ एहराज भी फैल गया है। ताहम खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। मकामी लोगों का कहना है कि लैंड स्लाइडिंग के बायस रोजमर्रा जिंदगी मुतासर हुई है और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरा मकाम पर इंतजामी और मुतलका महकमे ने मलबा हटाने के बाद यकतरफा ट्रैफिक को आर्जी तौर पर
बहाल कर दिया है। मकामी बाशिंदों ने उम्मीद जाहिर की है कि नेशनल हाईवे की तोसी और सड़क की चौड़ाई का काम मुकम्मल होने के बाद मुतबादिल रास्ते तैयार किए जाएंगे, जिससे मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के खतरात कम हो सकेंगे। वाज़ेह रहे कि श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम जारी है, जिसे जल्द ही जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है और इस मंसूबे की तकमील से न सिर्फ मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी बल्कि खत्ते की माशी तरक्की को भी फरोग हासिल होगा। गाड़ी वाइड के फना हाय 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 गाड़ी वाइड के फना गाड़ी वाइड के इंटरेस्ट हो बैंड है। जिला पुंछ की तहसील मंडी के दूर इफ्तादा और पहाड़ी इलाका लोरन के ग्रेंग जंगल में फौज ने बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए दहशतगर्दों के एक खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया है। तफसीलात के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान आईईडी से मुशाबा मवाद और दीगर लॉजिस्टिक सामान बरामद किया गया है। जराये के मुताबिक फोर्सेज ने इलाके में तलाशी और गिराव की कार्रवाई तेज कर दी है। सख्त सर्दी के बावजूद फोर्सेज मुसलसल ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं ताकि इलाके में सरगर्म दहशतगर्द अनासर का सुराग लगाया जा सके। मजीद तफसीलात दे रहे हैं मंडी से इरफान मुगल। तहसील मंडी के दूरदराज और पहाड़ी इलाका ब्लॉक लोर के गड़ंग जंगलों में फौज की रोमियो फोर्स की जानिब से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के एक बड़े ठिकाने का पर्दाफाश किया गया है। मुख्तलिफ खबर रसा एजेंसियों और ज़राए के मुताबिक दी गई जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान आईईडी से मुशाबे मवाद और दीगर लॉजिस्टिक सामान जो है वो बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि इस इलाके में गुज़श्ता चंद रोज़ कबल भी बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। चूँकि शिकायत ये मौसूल हुई थी इस इलाके से, क्योंकि इस इलाके में जो है वो मुश्तबा अफराद की नकलो हमल है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से बड़े पैमाने पर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ताहम उसके बाद जुमेरात के रोज़ फिर से फौज की रोमियो फोर्स की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के एक बड़े ठिकाने का पर्दाफाश किया गया है और बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान आईईडी से मुशाबे मवाद और साथ ही साथ लॉजिस्टिक सामान भी बरामद किया गया है। ये फ़ौज के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इलाके में अमन को बहाल करने के लिए फ़ौज जो है हर वक्त चौकसी बरत रही है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इलाके में लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी और कठुआ पुलिस ने हीरानगर पुलिस स्टेशन में एक मुश्तरका सिक्योरिटी मशक अंजाम दी है। इस मशक का मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फोर्सेस की तैयारी, बाहमी हम आहंगी और रद्द-ए-अमल की सलाहियत का जायजा लेना था। ज़राए के मुताबिक मशक के दौरान दहशतगर्दी से निपटने, यरगमालियों की बाजियाबी और हसास मकामात की हिफाजत से मुतल्लिक मुख्तलिफ मंजरनामों की अमली मशक की गई है। एनर्जी कमांडोज और जम्मू कश्मीर पुलिस के अहलकारों ने पेशेवराना महारत का मुजाहरा करते हुए मशक को कामयाबी से मुकम्मल किया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस तरह की मशक़ें सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी चैलेंज से मुअस्सर तरीके से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रखने में मददगार साबित होती है। वादिया कश्मीर में बढ़ती हुई महंगाई बदस्तूर दुकानदारों और आम सार्फिन दोनों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बुनियादी ज़रूरी अशिया, खुर्दनोश समेत दीगर सामान की कीमतें अब भी बुलंद सतह पर बरकरार हैं, जिसके बायस बाजारों में खरीद व फरोख्त मुतासर हो रही है। मकामी दुकानदारों का कहना है कि महंगाई ने बराह रास्त उनके कारोबार पर असर डाला है। लोग अब कम खर्च कर रहे हैं और बाजारों का रुख भी पहले के मुकाबले में कम कर रहे हैं। श्रीनगर के दुकानदारों ने बताया है कि कीमतें बढ़ने के बायस सार्फिन मोहतात हो गए हैं, जिससे उनकी आमदनी में नुमाया कमी आई है। ताजरों ने कारोबार में कमी की एक बड़ी वजह मौजूदा मौसमी हालात को भी करार दिया है। उनका कहना है कि इस साल गैर मामूली तौर पर खुश्क और खुशगवार मौसम के बायस
सर्दियों से मुतल्लिक अशिया की फरोख्त मुतासर हुई है। एक और दुकानदार का कहना है कि चूँकि मौसम ज़्यादा सर्द नहीं है, इसलिए लोग गर्म कपड़े और दीगर मौसमी सामान खरीदने से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाजारों में ग्राहकों की आमद कम हो गई है। ताहम उन तमाम मुश्किलात के बावजूद दुकानदारों में उम्मीद की किरण अब भी मौजूद है। बेशतर ताजरों का मानना है कि आने वाले महीनों में महंगाई में कमी आएगी और साल 2026 के दौरान कारोबारी हालात बेहतर होंगे। एक दुकानदार ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि नया साल खुशहाली, बेहतर मौसम और महंगाई से निजात लेकर आएगा। फिलहाल दुकानदार बेहतर माशी हालात और ग्राहकों की बढ़ती हुई आमद के मुंतज़िर हैं और उन्हें उम्मीद है कि नया साल मकामी बाजारों के लिए इस्तेहकाम और तरक्की का पैगाम साबित हो। कम अगर अक दो सौदा खालो 3 दोहन कनान क्या घर पत घर वातान लोड करेल आटमन मज ये गई कम यपोर गो बाजर द्रजर तो हेकान कहें कर क्या हेको वन जान अल्लाह ताला बेहतर तो मगर अहन यहान क्या सौदा मकलान पका बे खाला काम दोस्त पकान कम ज्यादा मगर ये गई बेकार ये कह मार्केट मे गई ना सब्जी गई 3 दह ये हाकस 3 दोहन मज चलो नहीं कहें तो कम बस यहान ये खुदा क्या चार कर वनकस मार्केटस मज द्रजर अलबत्ता सब्जी वनकस नरमी सब्जी थोड़ा नरमी बाकी डिमांड कहें तो लुक हिरासानी हेवान करान सह रबस जानन बेहतर गोड़े यहान अमन अमान गस रोजन यह वरी गस यह पैगाम है अमन अमान गस रोजन टूरिज्म गस बढ़ुन यह ख्वाहिश क्या टूरिज्म सह तबकह जुड़ित ट्रांसपोर्ट यम दस्तकारी खुदा वंद करीम यह यहान क्या यूत बत गस टूरिस्ट यून यून द्रजर जनाब अली वारिया द्रजर गो काफी हद खुद गो ज्यादा लुक आय पीसन लुक आय ग्रेट पीसन लुकन हालत गसन खराब गसन क्या दो दो बाजार गर्मान दो दो टैक्स ज्यादा हेन दो बाकी चीज वैट चीज हेवान चीजन पे वैट खसान ज्यादा लुकन गो बार कम ग अम द्रज सह काफी कम लुक हेकान बिचार गरीब हेकान ये तम तूल चून तो सह हेकान चीज हेत तो अवे मार्केट कम बाजार कम तो लोग गए बिचार यप कम दिन बनान लुकन ज्यादा कहें 2017 इंशाल्लाह रहमान बमत खुदा दो दवाई कड़ो इंशाल्लाह उम्मीद कि इंशाल्लाह कर खुदा रुत रुत उम्मीदवार इंसान पत्थर प्योमुत इंसान मिस्कीन इंसान हेकान वनकस यड़ पकन क्या कर सह बिचार शॉपिंग क्या अन सह बचन पलो क्या अन सह खन खुराकी चीज बिचार गर्मी पलो वन कमल अन गर्म पलो वन अन क्या अयालस पाल क्या यपर बिजनेस यपर कार यपर बार यपर द्रजर वन लुकन नजर बजटस पे तो बजटन कोड़ वारे जू लूक बिचार वनकस परछन लूक ऑलरेडी बनेमुत बिचार शिकार बेमारी हंद शिकार बनेमुत वजह टेंशन कम सी गई द्रजर सह बिचार इंसान हेकान एफोर्ड कर चाहे पान बेमार गरिक बेमार बच्चा बेमार सह एफोर्ड हेकान कर सह गस डॉक्टर बहुत वन सह हे कंपाउंडरस गि तमिस बिचारस सूरत वनकस सह बिचार वनकस पन प्योमुत बिचार वजह द्रजर गो अरूजस पे वो द्रजर बहुत दपान मे बासान ये जम्मू कश्मीर मज तूत द्रजर तूत हिंदुस्तान कुन स्टेटस मज गो द्रजर बे दिन साब पाक सह खुदाई जानान ये लूक क्या खेवान बाकी गो गोबरा ये लूक वनकस खत्म बो वन ये लूक वोत बेचनस पे ये लूक बिचार मे कनन मज गो मे दपा लूक वन किडनी कनान वजह द्रजर लूक वन खून पन कनान वजह द्रजर यपर किन आव यह बजट मे बासान
یہ وری گوش یہ قوم کڑن یم حساب درجر گو یہ یمن پنن سیاست دانن ہز مہربانی تو تمن یوت خیال کہ یہ لکن کس راحت دمو تو کس سہولت مے باسان ات لائق یمن نش کیا ساری ساری کران لتمون. کشمیر کے مارکیٹس میں مہنگائی عروج پر دیکھنے کو مل رہی ہے. وہیں پر اگر بات کرتے ہیں مارکیٹس کی تو مارکیٹ سنسان پڑے ہیں کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. بات اگر کرتے ہیں بیسک فوڈز کی، بیسک چیزوں کی، تو وہ بھی جو ہے اس وقت بہت ہی زیادہ مہنگی ہو چکی ہے. اب 2026 آ چکا ہے، کیا کچھ اب امید ہے شاپ کیپر کو، خاص کر کیونکہ اگر ہم شاپ کیپرز کی بات کرتے ہیں تو دکاندار جو ہے وہ ایسے ہی بیٹھے ہیں، بیکار بیٹھے ہیں. ان کا کہنا یہ بھی رہتا ہے کہ لوگ ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اس وقت بڑھ چکی ہے مارکیٹس کے اندر. اور 2026 کیا کچھ لے کر آتی ہے وہ بھی جو ہے دیکھنے کی بات ہے. کیا مہنگائی کم ہوگی؟ کیا لوگ پھر سے مارکیٹس میں جو ہے آئیں گے؟ کیا پھر سے خرید و فروخت کرنے کے لیے آئے گی؟ اور وہیں پر موسم کی بھی بات کرتے ہیں. موسم کی وجہ سے بھی گرم کپڑوں، گرم چیزوں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ اس وقت کم ہو چکی ہے. کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں ویدر کی تو ویدر جو ہے اس وقت ڈرائی دیکھنے کو مل رہا ہے، ایسی دھوپ دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ مارچ کے مہینے میں دیکھنے کو ملتی ہے. اور ویسے ہی اگر ہم مہنگائی کی بات کریں تو مہنگائی بھی جو ہے بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹس ایسے ہی سن پڑے ہیں. گلستان ٹی وی کے لیے سری نگر سے میں ناطقہ بٹ، ویڈیو جرنلسٹ نعیم شفیع کے ساتھ. احمد پورہ علاقے میں آج توبی محلہ کے قریب پل کے پاس سڑک کی انتہائی خستہ حالت کے خلاف ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. یہ پل محمد پورہ کو خانڈی پورہ، کترسو اور دیگر ملحقہ علاقوں سے جوڑنے والا ایک اہم رابطہ ذریعہ ہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ پل کے قریب سڑک گزشتہ کئی برسوں سے خستہ حالت میں ہے، جس کی وجہ سے آمد رفت کرنے والے لوگوں کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں. مقامی لوگوں کے مطابق مریضوں، طلبہ، یومیہ مزدوری کرنے والوں اور دیگر رہائشیوں کو خاص طور پر خراب موسم کے دوران سخت پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے. علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بارش اور برفباری کے دوران سڑک مزید خطرناک ہو جاتی ہیں، جس سے حادثات کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے. احتجاج میں شامل لوگوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ سنگین مسئلے کو فوری طور پر نوٹس لیا جائے. محمد پورہ اور آس پاس کے دیہات کے رہائشیوں نے بالخصوص ڈپٹی کمشنر کلگام سے اپیل کی ہے کہ وہ ذاتی طور پر مداخلت کرے اور پل کے نزدیک سڑک کی مرمت اور اپ گریڈیشن کو یقینی بنائے تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو سکے. مطلب گراؤنڈ 2015 من گو میگڈم یس روڈس پتہ رود یس مطلب کی گز روز یس بنانے آز تام تل گورمنٹن کھانا تہ پرسان. سون ایم ایل اے محمد یوسف تاریق گامی کھوت اکہ دۄیہِ لٹہِ یپٲرۍ تم تہ دِژ تمہِ ساتہٕ نظر ییٚلہِ تٔمِس پانس ییٚلہِ ہٮ۪ٹہٕ تٔمِس لگہِ تٔمِس باسیو لُکھ چھِ سختی کران. پتہٕ دوٚپ تٔمۍ پرواے مہٕ بٔرِو کِہیٖنۍ، انشاءاللہ یہِ حظ کرٕ بہٕ یہِ کٲم حل. مگر یہ کٲم گٔے نہٕ آز تانۍ حل کینٛہہ. میانٮ۪ن أچھن برونٛٹھ کَنہِ اوس یپٲرۍ بایکہِ وول وسان، لٔڈیٖز ٲس پٔتۍ کِنۍ، ییٚمۍ جمپن جناب محترمو ییٚلہِ لٔڈیٖز پٔتۍ کِنۍ لٔج ہٮ۪ٹھ سۄ پیٚیہِ پتھر. اَسہِ ترٲو تٔمِس تریش پانہٕ، مطلب مےٚ ترٲو اَسہِ پانہٕ تُج اَسہِ سۄ ییٚتٮ۪ن تھوٚد. اَسہِ دوٚپ یہِ مطلب مۄکلے. تہٕ بہرحال اس لیے چھِ أسۍ پُرزور گُزٲرِش کران ڈی سی صٲبس یہ مسئلہ سون کٔرتو حل. کیٛازِ یہِ چھُنہٕ مطلب سون کینٛہہ، یہِ چھُ لُکن ہُنٛد. بیٚیہِ چھُ مطلب روڈ گورنمنٹ اس کا ذمہ دار ہے، اس کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. اس لیے سوئی پُرزور گزٲرِش یہے کہ روڈ کٔرۍتون کمپلیٹ، لُکن واتہِ سہوٗلیت. گاڑِ وٲلۍ تہِ بِچٲرۍ سختی کران. ونکٮ۪ن چھِ عام زمیٖندار یپٲرۍ مطلب ریٖڈِ ہیٚتہِ پیٚوان اتھو سۭتۍ پکناوٕنۍ، یہِ تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان یپٲرۍ پکنٲیِتھ کِہیٖنۍ. یہِ حظ چھُ سون اتھ گوٚو لگ بگ 2015 پٮ۪ٹھ ووت یتھ یِتھے پٲٹھۍ. 2015 پٮ۪ٹھ ووت بالکل یہ سفر کران أسۍ بالکل یہ کھوڑ مطلب ییٚتٮ۪ن مےٚ دوٚپ نا لیڈیٖز چھِ یِوان، مرد چھِ یِوان. اس لیے یہ کٲم چھنہٕ ہٮ۪کان مطلب کمپلیٹ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. وٕچھ حظ گٲڑۍ چھِ ونکٮ۪س پکان آنکھوں دیکھا حال چھُ ونکٮ۪ن ییٚتٮ۪ن کوتاہ مُصیبت چھِ گاڑِ وٲلۍ پیش کران. باقٕے یہے چھِ گُزٲرِش سٲنۍ بیٚیہِ تہِ اکہِ لٹہِ ڈی سی صٲبس یہِ واتنٲیِو تُہۍ سون مسلہٕ کرنٲیتو حل، یہِ روڈ کٔرِو کمپلیٹ. مگر مےٚ چھُنہٕ باسان اسہِ سۭتۍ کیٛازِ چھُ ڈی سی صٲب بورٕ ماجہِ ہُنٛد سلوٗک کران. أسۍ ژھٕنۍ، اَسہِ کرے بارہا کوٗشش ایم ایل اے صٲبس. سٲنِس ایم ایل اے صٲبس چھنہٕ پتہ یا چھنہٕ تٔمِس محمد پورہس منٛز وٲڈ پیوان. سُہ کیٛازِ اگر تِم سارنٕے کوچن گژھان چھِ، معموٗلی کوچن شُپھٹٮ۪ن کوچن چھِ گژھان تِم رِبن ژٹنہِ. مگر افسوٗس اکھ چھُ یُس زن یہِ اکھ سانیہ اکھ سُہ دِل چھُ ییٚتٮ۪ن دُکھن زبردست
یم गड़ सन मोज बेन योथन यवन छ यल तिमन क्रमस दब लागन छ यतन यत लट पे सानि माज बाइक पे वारिया एक्सीडेंट गए बारहा कर मैं गुजारिश करे पन्ने डी साहबस के तमिस पे जबरदस्त उम्मीद कि वाकई डी साहब आसुन सफर तुलन छुन असे पता क्या सनिस डी साहबस क्या छु यवन वन तो सु क्या छु यछन अस वन दी तमिस गुजारिश करन अस छु सियासी लीडरो वारिया इस्तेसाल कोन चाहे एमएलए साहब छा या अजीज प्रेजेंट गवर्नमेंट छा तिम छन आवाम के मसलन बुलंगबाद दावा पेट करन मगर ग्राउंडस पे छन कि नजरी यवन के वन छु पुरजोर बी अक लट पन्निस डीसी साहबस अतर आमिर साहबस पुरजोर गुजारिश करन पन्ने आवाम के तरफ मेहरबानी करतो ये सोन ये मसला हल तो नमन लुकन यमन जन दब लगन बुजुर्ग छु या बेमार छु कहां आसन देव तिमन राहत वातनाया अस रोजाव हर हमें डी साहब शुक्रगुजार। त्राल के गांग इलाके के नौजवानों ने महकमा तरक्की से अपने इलाके में खेल का मैदान तामीर करने का मुतालबा किया है। नौजवानों का कहना है कि इलाके में खेल का कोई मुनासिब मैदान मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें खेलने के लिए दूर दराज इलाकों में जाकर रोजाना की बुनियाद पर खेल सरगर्मियों में हिस्सा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नौजवानों ने बताया कि अगरचे महकमा देही तरक्की की जानिब से दीगर कई इलाकों में खेल के मैदान तामीर किए गए हैं, ताम गांग इलाके को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे से अपील की है कि नौजवानों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के पेश नज़र इलाके में जल्द अज जल्द खेल का मैदान तामीर किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर एक गाँव में, जो भी इस इलाके में गाँव में हर एक के पास ये स्टेडियम है बच्चों के खेलने के लिए। सिर्फ एक गांव है हमारा ये जहाँ पे गवर्नमेंट ने कभी तवज्जो नहीं दिया। हमारे पास कोई खेलने के लिए ग्राउंड ही नहीं है। यहाँ पे एक पार्क थी, हम लोग यहाँ पे खेलते हैं, अब यहाँ पे भी ये पार्क ख़राब हो गई है। यहाँ पे अब इसमें वो है ना, ये यहाँ पे नहीं खेल सकते हम। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि हमें भी एक थोड़ा सा गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करें यहाँ पे स्टेट नेट कहाँ पे है, तो एक हमें भी ग्राउंड चाहिए था बच्चों के खेलने के लिए हमारे पास। सर आप देख सकते हैं हम यहाँ हमारे पास यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है, हमें बटागुंड जाना पड़ता है, गुलशनपुरा दूसरे ग्राउंडों में खेलने के लिए जाना पड़ता है। तो अगर हमारे पास भी ग्राउंड होता तो कोई टैलेंट यहाँ से भी निकल सकता है, ठीक है ना सर। तो हमें यही डिमांड है आपकी, कोई आइडेंटिफाई करे गवर्नमेंट कोई लैंड इस गाँव में, स्टेट लैंड बहुत है, तो अगर वो आइडेंटिफाई करे हमारे पास भी एक ग्राउंड होता तो हमें भी कोई टैलेंट देखने को मिलता है यहाँ पे सर। तो हमारा मसला यही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है बच्चों में, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास कोई खेलने की जगह नहीं है। आलमोस्ट हर एक गांव जो त्राल का है हर किसी को स्टेडियम मिला है, कुछ गांवों को 2-2 स्टेडियम में मिले हैं। तो बस हमें ये मसला है, ऑल्दो स्टेट लैंड अवेलेबल है हमारे गांव में, तो मेरी अपील यही है हायर अथॉरिटी से कि स्टेट लैंड को आइडेंटिफाई किया जाए और हमें भी छोटा सा ग्राउंड और बच्चों को खेलने के लिए एक ग्राउंड बनाया जाए। कश्मीर के बड़े सनती मरकज सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा पुलवामा में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फूड पार्क के लिए हासिल की गई 400 कनाल अराजी गुज़श्ता कई बरसों से बेकार पड़ी है, जबकि कई पढ़े लिखे नौजवानों ने यूनिट कायम करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के जरिए ज़मीन के लिए दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन सिडको में ज़मीन न होने से पढ़े लिखे नौजवान मायूस हो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट को एक प्राइवेट कंपनी ने सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा में ज़मीन हासिल की है, लेकिन ज़मीन गुज़श्ता कई बरसों से बेकार रखी गई हैं, जबकि फूड पार्क का मकसद यहाँ पर मुख्तलिफ फूड प्रोसेसिंग के हवाले से इंडस्ट्रीज़ कायम करने थे। 400 कनाल अराजी बेकार रखने पर सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट के सदर और मकामी MLA ने कहा है कि अराजी को बेकार रखने से पढ़े लिखे नौजवानों के साथ मजाक हो रहा है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि 400 कनाल ज़मीन भी है फूड पार्क के लिए, लेकिन आज तक इस पर कोई काम ना हो सका। इसमें से एक कंपनी है RF की, एक तो है राइस बिल्डर, दूसरा है फिल्म इंडस्ट्री, तीसरा और भी एक कंपनी है। तीनों मिल के उन्होंने 400 कनाल ये लीज पे लिया है, लेकिन आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ, ज़मीन बेकार पड़ी है। अब क्या हुआ है कि उन्होंने 200 कनाल ली है, सुनने में आया है, डिपार्टमेंट से हमने सुना है कि 200 कनाल उन्होंने लिए है और 200 कनाल जो है वो उनको सब लीज करना है और उसके लिए सेक्रेटरीट गई है फाइल। तो सेक्रेटरीट में क्या है, उन्होंने वो लॉ डिपार्टमेंट को भेजी है, वहाँ से लीगल ओपिनियन आ जाएगी
उसके बाद ये लैंड से रिट्रीव हो जाएगा, वापस आ जाएगा। उसके बाद ये उनको दिया जाएगा जिन्होंने ऑनलाइन ऑलरेडी किया है, लेकिन उनके लिए जिनका फूड प्रोसेसिंग होगा, फूड यूनिट्स होंगे, तो उनको ये फराहम की जाएगी। लेकिन ये लैंड जो है बहुत मुद्दत से बेकार पड़ा है, कोई गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, सिडको डिपार्टमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट सोए हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि लैंड पड़ा हुआ है, बेरोजगारी है। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि इसकी तरफ जल्द ध्यान दिया जाए। तकरीबन अगर यहाँ पर लैंड ये रिट्रीव किया जाए, उसके बाद ये उनको यूनिट होल्डर्स को दिया जाए, तकरीबन 1000 तक का जो। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।